Hi, good evening. Mayur here from Beyond Bollywood. Some people will have to make way, please. Y'all are not opaque. Hi. Hi, Yohani. Hi, Shubin. Obviously, I got a side view of the song. Uh, I think the first thing I would say, my initial impression is behind you, we can hear the sound of that stream. It's pure. And then in Leh, that's a beautiful clear sky. And then it's the tones of Jubin and Yohani. Thank You you. know, I think that's my initial impression, and I'm like stunned, Yohani, for your first Hindi single. Because initially I was wondering that you might just have, like a couplet or just one odd verse. But it's like both of you, it's a proper duet. I think you briefly mentioned about that. You basically got it bang on in your first dub, but I'm sure it can't be that all that easy. There must It have been wasn't. there must have been obviously some individual or mental preparation. Would you be able to talk about it? Yes, so the first time, I think couple of the verses that you hear now is from the first dub, but I think the verses we took it separately because Jubin here changed the lyrics a lot of times. So I come prepared to record it, and he's like, "So yo, I changed a little bit," and he has changed just the entire words. So I was like, "Oh, it's cool." Um, so I was like, how am I gonna get it? But he taught me really well, and Prasanna, Prasanna, yes. Prasanna, Prasanna is the guy who's produced the music of the. he was amazing. So I think all those elements got together, and here we are now. Obviously, Yohani, you're the Emerald girl from Emerald Isle, and when I look at you, in your young career so far, for a girl who was an accounting graduate, then she moved to singing, she became this singing sensation, and you kind of remind me. I don't know whether you heard of this name, but in the 80s there was this brilliant singer from Pakistan, Nazia Hassan. The kind of impact she had, on firstly Pakistani music and then Indian music and global. She became like this pop queen of Asia. And how do you react, if today somebody is to compare you with her and they tell you that you are representing Asia at a global scale? That's amazing to think like that. I don't have an answer for that, but I think everyone has their different elements and different journeys. So if you compare, I am so honored, but I think everyone has their separate journeys, and I am still figuring out my one. It's a little bit cold. अरे बंद कर दो यार Sorry. Okay. Hi, Zumin here. जी. Hi. 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 खैर मैं क्या बोलूँ, एक के बाद एक आपके सॉन्ग्स ऐसे आते हैं, धमाकेदार आते हैं कि बस सुनने की इच्छा हो जाती है। और ब्लू टू एंड दिस डार्क एंड दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत सुंदर। आपका हर गाना लोगों के दिलों के अंदर चला जाता है, बहुत समा जाता है। मैं आपको ऑफ स्क्रीन भी बोल चुकी हूँ कि मुझे आपका ये दिल बार बार कह रहा है मुझको। हाल ही में ये वाला गाना एक सीरियल में भी इस्तेमाल किया गया था। आर यू अवेयर ऑफ इट? एंड कैसा लगता है जब महिलाओं के घर और उनके दिल के अंदर भी आपकी आवाज़ ऐसे सीरियल के थ्रू चली जाती होगी? और गाने के बारे में अगर कुछ कहना चाहें। बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है और दिस सॉन्ग इज बेसिकली द ये एक इंडिया और नेपाल का कॉम्बिनेशन रहा। ये सॉन्ग नेपाली फिल्म में मुझे गाने का मौका मिला और जो गाने के कंपोज़र हैं हमारे उत्तराखंड से पवनदीप राजन है। सो आई थिंक इट्स मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं। साथ में काम करना और अच्छा काम करना जो लोगों को पसंद आए, लोगों के दिल में जगह बनाए। आई थिंक दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट लिव्स फॉर। आर्टिस्ट को एक बार अगर ताली लग जाती है तो फिर मुझे लगता है वो ख़राब हो जाता है उसको फिर उसके बाद उसका नशा चढ़ जाता है कि अब ताली चाहिए ही चाहिए। जितनी बार भी स्टेज पे जाऊँगा उतनी बार ताली चाहिए। तो आई थिंक हम लोग सब उसी के सताए हुए हैं और दैट सॉन्ग इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। लोगों को बहुत पसंद आया वो गाना, रील्स बहुत बनी उस गाने पर डेफिनेटली। और बहुत जल्दी आई थिंक मैं उस गाने को अच्छी तरह से तैयार करके स्टेज पर भी उतारूँगा अपने साथ। सो दैट विल बी अगेन वेरी स्पेशल। थैंक यू। Jubin, Yohani,
पूरी टीम को फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशन, सिमरन सिंह हियर। या थैंक यू सिमरन। ओके, मेरा सवाल से पहले मैं कहना चाहूँगा सर, जिस तरीके से पिक्चराइजेशन किया इट्स ब्यूटीफुल, मतलब वोकल्स तो ब्यूटीफुल है, लेकिन जो पिक्चराइजेशन था दैट एडेड मोर वैल्यू टू द लिरिक्स। थैंक यू। ओके, मेरा सवाल जुबिन आपसे भी है और योहानी आपसे भी है। पहला सवाल मैं जुबिन आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से इसके लिरिक्स है मिल के बिछड़ते हैं, तो ऐसे कोई आपके ट्रिप्स आपके जहन में है जहाँ पे यू मेट समवन एंड वो आज वो बस यादों में है, मे बी वन ऑफ योर सोलो ट्रिप्स और एनी ट्रिप, इवन योहानी यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। So yeah, I think when we are on a journey, we definitely meet new people. इस गाने के लिरिक्स मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे साथ कंपोज करते हैं रॉकी खन्ना, उन्होंने लिखे हैं इसके लिरिक्स। और उस पूरे गाने की थॉट ही वो है कि प्यार के बिना दोस्ती नहीं मुकम्मल हो सकती, और दोस्ती के बगैर प्यार नहीं मुकम्मल हो सकता। They have to be together, and only then love and friendship can form something which could last for a very long time. हाँ, अक्सर हम लोग when we travel it out, जब हम जाते हैं हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बट हाँ कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपके मन में और दिमाग में हर तरह से बस जाते हैं। Probably they become part of your memory line, and every time you hear a song and every time you see a place or every time you remember something will relate you to that person, individual. और अक्सर मुझे लगता है हम लोग मिले हैं। I have met a lot of people on my journey who I could relate to even today, and similarly I would like to give a big round of I would like to mention जो हमारे साथ co-actors हैं इसमें, जो मेरे opposite play कर रही हैं, साक्षी जोशी, brilliant actress again from Dehradun, from the mountains, and Martin from Chandigarh. He's from Bombay. Yeah, he's from अरे मैं सुबह से सबको चंडीगढ़ बोल रहा हूँ बेचारे। I'm sorry, Martin. Okay, Martin is from. Agent is from. His agent is from Chandigarh. Sorry. So he's from Bombay, and चार लोग हम लोग साथ में, हम लोग की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही, तो मज़ा भी आया उसको काम को करने में। And Paji, I think Paji also felt very different while shooting us this time as compared to all the other times that he shot. काफी different. काफ़ी different लगा। So yeah, we've met a lot of people, definitely, and they stay with us. Okay, Yohani, my question is to you. Okay, you want to add something to this one? No, I'm Okay. Okay, so my question. She's the actual traveler. I think you should ask her. So Yohani, you have to come. She's literally traveling to India and meeting so many new people. Yeah, to share a memorable trip with us. Yeah, I think this trip for me was very memorable, because mostly I think more than it being a music video, for me it was about making connections. It was the first time I met all of these guys. It was really nice spending time together and having fun during the shoot. More than a music video, I think for me it's just like a trip. A trip, but someone's shooting it. But it was really nice. I love it. I would do it again. Okay, Yohani, my question to you is ki, how do you look upon to your journey, the love that you are getting from India? It's overwhelming, to be honest. I'm still processing it myself, because everything has happened in like a really short time, and now I'm here. I moved here. My life has completely changed its trajectory, so I'm still getting used to it. But India has been very kind to me, so thank you, all of you guys. योगी साहब, Sir. बहुत अच्छा लगा आपका गाना, और ये मतलब अपने हिंदुस्तान के अंदर और लद्दाख में फिल्माया है, सबसे बड़ी बात है। तो क्या कभी उम्मीद करेंगे कि आगे चल के आप देहरादून सिटी या उत्तराखंड की खूबसूरती को किसी एल्बम में लाना चाहें? असल में जो मेरा और नवजीत पाजी का पहला वीडियो था, उत्तराखंड में शूट हुआ था। गाने का नाम था दिल चाहते हो या जहाँ चाहते हो हमसे बता दो कि क्या चाहते हो। मसूरी में हमने शूट करा था, एंड हम लोग सिर्फ मौका ढूंढ रहे होते हैं कब हमें मौका मिलेगा कि उत्तराखंड जाके शूट कर सके। एक तो घर है, फिर ऊपर से पहाड़ हैं, और थोड़ा सा एक अच्छी लाइटिंग का बहुत स्पेशल स्पेस है वहाँ पर। और पाजी को तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है देहरादून शूट करने के लिए। सो आई थिंक डेफिनेटली आने वाले टाइम में फिर कुछ जाकर के उत्तराखंड में शूट करेंगे। कभी से देहरादून हम लोग देहरादून तो शूट करना चाहता हूँ। देहरादून में भीड़ भाड़ आजकल काफ़ी ज़्यादा, इट्स नॉट वेरी इजी टू शूट इन देहरादून। बहुत कठिनाई हो गई देहरादून में शूट करना, और
थोड़ा सा भी देहरादून के लेफ्ट राइट जाएं तो हमारा ऋषिकेश आ जाता है, मसूरी आ जाता है. इट्स क्वाइट स्पेशल टू शूट है. हाँ, लेकिन कभी सिटी लाइफ के ऊपर अगर शूट करना हुआ तो डेफिनेटली देहरादून में शूट करेंगे. थैंक यू. Hi Shubin and Yohani, Nilima here. Hello. Hi. I love all your songs, Shubin, and Thank this you. one is fabulous again. And Yohani, welcome to India. मैं दोनों को ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों भी ऐसे लगता है कि दिल के मुसाफिर हैं. You are traveler by heart, I feel. So, हाँ यार, सही बात है ये सही बात है बिल्कुल जी. so what is traveling for you both? Traveling for me is about meeting new people, listening to their kind of music, and figuring out their cultures, where they come from. It's just everything is new, and traveling makes you get exposed to things like that. And I think that's how I listen to most of my music as well, from other people and other people's cultures. So yeah, just exploring. Hello, Zubin sir. Yeah. Hello, this is Vinay. Hi Vinay. Okay, yes, sorry, yes. I will answer you first, then I'll come to Vinay. I love traveling. I'm a traveler. I was born a traveler. और मुझे लगता है एक बड़ी छोटी सी चीज़ शेयर करूँगा, उससे आपको शायद मेरा एक बहुत हमेशा से मानना रहा है कि अगर इंसान दूर तक देख सकता है, दूर तक सोच सकता है. एंड ट्रैवल करते हुए हमको एक मौका मिलता है कि हम ऐसी जगह जा सके जहाँ हम दूर तक देख सकें. अक्सर हमारे सामने एक बिल्डिंग होती है, गाड़ी होती है, कोई लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग वी डोंट गेट टू सी दूर तक, वी डोंट गेट टू सी डिस्टेंस. और आई थिंक आई क्रेव टू सी डिस्टेंस. अगर मैं कहीं ऐसी जगह खड़ा हूँ किसी पहाड़ के ऊपर, तो मैं दूर तक देखना चाहता हूँ. एंड जस्ट काइंड्स ऑफ ओपन्स अप माय माइंड in so many ways to think and imagine things. Yeah, I'm a traveler by heart, absolutely. And I think all of us who've made the video, we were all really crazy for traveling. इसलिए इतना मजा उसमें आ रहा है वीडियो में सबको देख करके, including the director of the video. He travels so much more than us, actually. Hello sir, this is Vinay. मेरा सवाल जुबिन सर आपसे है कि आपने काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग्स दिए हुए हैं, काफ़ी लोगों को खुश कर देते हो, काफ़ी लोगों को इमोशनल कर देते हो. तो ऑडियंस से रिस्पॉन्सेज मिलने के बाद किस थिंकिंग को लेके आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हो? यार, ऑडियंस का रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि क्या होता है, कितनी बार ऐसा नहीं कि हमने जितने गाने निकाले सारे अच्छे गाने थे, कुछ गाने ऐसे थे जो नहीं पसंद आए जनता को. ऐसा हर बार होता है, काफ़ी बार होता है. कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ सक्सेस होती है. तो जो फेलियर्स हैं उनसे ऊपर आने के लिए करेक्ट क्रिटिसिज्म जो है जनता देती है, जो राइट रिव्यू होता है ना. क्योंकि जो बंदा आपके यूट्यूब के नीचे, आपके कमेंट्स में आपके फॉलो करके आपको लिख रहा है, वो पर्सनली आपको जानता नहीं. आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले तो बोलते हैं अरे बेटा बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया गाना बनाया तुमने. जनता बोल रही है कितना बेकार गाना है, बट घर वाले प्यार करते हैं आपसे तो वो बोलेंगे हाँ अच्छा गाना बनाया तुमने. बट आई थिंक जनता का जो एक्चुअल रिव्यू आता है उससे हमें पता लगता है कि किस तरह से हमारा संगीत और हम परसीव करे जा रहे हैं. एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड वो समझने के लिए मुझे लगता है जनता के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है. एंड थैंक्स टू मीडिया, आप लोग के थ्रू हमें मौका मिलता है एक्चुअली जनता को छू पाने का, उनकी जिंदगियां छू पाने का. जी. दिस इज कॉल्ड द हिप्पी लुक. पाजी, do you want to talk about my look? मैं पाजी के ऊपर डालना चाहूँगा ये पूरा क्वेश्चन, क्योंकि this is जुबन, actual जुबन. मतलब बाकी तैयार हो गया, आप वैसे देखेंगे तो actually जुबन, this is. मेरा क्वेश्चन, कोई और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं टी सीरीज के, क्योंकि हमेशा जो कॉम्बिनेशन है वो एक के बाद एक हिट देता जा रहा है. और I'm so sorry. तुम्हारी are you coming up with some more projects for the टी सीरीज? Yes, of course. Probably first week of December. Very soon. right there. मेरा क्वेश्चन डायरेक्टर से है, जी सर. तानु फ्रॉम नवभारत टाइम्स. उनने लोग अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसा रहा उनके लिए, बट आपको एक सेटअप बना के दिया जाता है, बट यूजुअली मतलब ये यूजुअल नहीं होता कि आप लेह जैसे प्लेसेस पे जाके डायरेक्ट करें. तो
वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? डायरेक्ट करना और उनको गाइड करना वहाँ पे कितना चैलेंजिंग था या कितना फन था? देखिए जुबिन पाजी की साइड से तो इट वाज क्वाइट इजी, क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी लेट्स गो टू लद्दाख चले चले चले, है ना। आई वाज द वन की ठीक है, क्रू इतना बड़ा होगा, कैसे हैंडल करेंगे वहाँ, और जो वो लद्दाख के आप लैंडस्केप देख रहे हैं ना, वो इतने नजदीक नहीं है, वहाँ से 4-5 घंटे ड्राइव है, एंड देयर आर नो होटल्स, है ना। तो इन्हें ये तो रेडी थे कि आप आज लेट्स डू इट। खाली जो चैलेंज था कि आर्टिस्ट बाकी कैसे परफॉर्म करेंगे इतनी ठंड में, क्योंकि आप ज्यादा लेयरिंग भी करते हैं तो लुक आउट होती है ना। देन वहां पे इनका पार्ट आता है जहाँ पे डेडिकेशन के साथ सुबह उठना, क्योंकि जब आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे शूट कर रहे होते हो, देन आर्टिस्ट से वो चीजें निकलवानी, अगर आर्टिस्ट डेडिकेटेड नहीं है तो आई थिंक वो बहुत दिक्कत हो जाती है। बाकी चैलेंजेस तो रहती रहते हैं, आप आउटस्कर्ट्स पे आके शूट कर रहे हैं, बट वो ट्यूनिंग टीम का, कोर टीम का, मतलब वो डेडिकेशन, आई थिंक वही ये चीज पॉसिबल कर सकता है, वरना बहुत शूट होते हैं लद्दाख देखेंगे अपने। बट जुबिन हियर सर सबसे पहले तो गाना बहुत बढ़िया बनाया सर, थैंक यू, मजा आ गया सुन। थैंक तो यू। क्यों ना थोड़ी सी कंपोजर के बारे में बात की जाए। वो है नहीं है, बात दूसरी है, उनके कितने टाइम अपने गाना बनाया? सर तो बेसिकली मैं और रॉकी खन्ना हम लोग साथ में म्यूजिक करते हैं। वो एक बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर हैं, उन्होंने एक गाना लिखा है, गुंचा कोई तेरे नाम कर दिया, साकी ने नाम भर दिया। और हम लोग का पहला गाना जो हम लोग ने साथ में रिलीज करा था वो था हमनवा मेरे, जिसको आप लोग ने बहुत प्यार दिया, मेरा पहला म्यूजिक वीडियो भी था। अब वो बड़े भाई भी हैं मेरे और मैनेजर भी हैं, तो बड़े भाई होने के नाते और इस गाने के साथ मेरे साथ कंपोजर होने के नाते वो यहाँ पर तो उनको आना चाहिए था, पर मैनेजर होने के नाते वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं मेरे साथ, तो वी बीन वेरी वेरी टाइट, इसलिए आ नहीं पाए। ये गाना हमने सर 3 से 4 साल पहले बनाया था, लॉकडाउन से भी पहले, और ये सिर्फ एक गिटार और वॉइस पे कुछ चीज़ें थी। जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया कि वो एक एक चीज़, जब आप मंजिल आपको दिख जाती है अपनी, तो उसके बाद फिर एक एक चीज़ जुड़ती बनती है, फिर कारवां बन जाता है वो, फिर एक पूरा एक हम इवेंचुअली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये गाना एक सोलो सॉन्ग था, हमें नहीं लगता था कि डुएट होगा, ये किसी भी तरह सोचा भी नहीं था एक्चुअली, बट फिर जब यूहानी आई और उन्होंने गाया, तो आप अगर गाना सुने तो इनका वॉइस बहुत स्पेशल साउंड कर रहा है इसमें, एज कम्पेयर टू द अदर सॉन्ग बहुत अलग साउंड कर रहा है, बहुत रॉ साउंड कर रहा है, साउंडिंग सो पर्सनल टू हर। और मुझको और रॉकी को, हमको ऐसा लगता है कि जब भी कोई सिंगर अगर किसी गाने में परफॉर्म करे तो उसकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो सामने अगर सुनाई दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जो एक्चुअल परफेक्शन है उस पर तो खैर हमें गैजेट्स और इक्विपमेंट्स भी लेके जाते हैं, लेकिन जो एक सिंगर की जो वल्नरेबिलिटी होती है वो कैप्चर करना मुझे लगता है इसकी खूबसूरती है। और फिर या इन्होंने डब करा, जब गाना रिकॉर्ड करा, फिर उसके बाद हम लोग ने, मैंने और रॉकी भाई ने भुट्टरबाजी को गाना भेजा। भुट्टरबाजी ने बोला कि ये तो कुछ ट्रैवल वीडियो लगता है और इसमें हमको कुछ अलग करना चाहिए, वी शुड नॉट शूट लाइक, मतलब इसमें स्टोरी पे ज़्यादा जोर ना दे करके उसकी एग्जीक्यूशन पे जोर देना चाहिए, उसके विजुअल पे जोर देना चाहिए हमको। स्टोरी है उसमें, कुछ है कि कुछ लोग मिल रहे हैं बिछड़ रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि हाउ दे आर ट्रैवलिंग लाइफ टुगेदर, यू नो, मतलब इट इज़ ऑल्सो लाइक अ लेसन फॉर लाइफ दिस वीडियो, कि हम लोग को जिंदगी के ना जो अच्छे पल है उनको याद रख करके आगे बढ़ना चाहिए, rather than thinking of the sad ones, and that's what the video signifies, and I think it's a beautiful song. I really love the song. Yes. And being a part of this song, it is so special, and we are missing the composer. We are missing Rocky Bhai here. He's the writer of the song, and I think he's watching us right now from from Bombay, and he's probably enjoying this. Thank you. And Yohini, Because I think that's my immediate objective kind of thing. पर इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, अभी तो खैर इनसे मैं 2 महीने से वाकिफ हूँ सर, पर लड़की में जज्बात है, जुनून है कि मतलब कर गुजरना है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बाद में इंटरव्यू देख के समझ में आएगा, जब कोई समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर इसके अंदर जज्बात है, इसके अंदर जुनून है कि मैं करना चाहती हूँ।
वहीं से शायद मैं रिलेट भी कर पाता हूँ। इससे कुछ जब मैंने शुरू करी थी अपनी जर्नी, मेरे अंदर भी बस जज्बात ही था सिर्फ, और कुछ था नहीं। तो जज्बात था कि हाँ करना है, कैसे होगा ये पता नहीं था, बट हाँ जज्बात जरूर था। मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये कर लेगी शायद। I need subtitles. You definitely need subtitles. But hopefully, in a couple of months, I'll be able to do it better, I think. So I'm just gonna give myself some time to learn more and explore more. जुबिन जी, ये over here this side. जुबिन जी यहाँ पे. सर यहाँ पे. Yes sir. Sir, I just wanted to, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मतलब कि आपने सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है और कई सारे रोमांटिक मोमेंट्स भी हैं इसमें जी। तो मतलब कि आप क्या एक मैं मानता हूँ कि एक्टिंग बहुत कठिन काम है और उसके लिए अलग परिश्रम है, अलग जर्नी है उसके लिए। आज मैं संगीतकार इसलिए बन पाया क्योंकि सालों से इसमें परिश्रम करा है, मैंने मेहनत करी है इसमें। तो जस्ट क्योंकि आज मुझे जनता देखना चाहती है तो मैं म्यूजिक वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत अपनी एक्टिंग की कला दिखा सकता हूँ, बट फिल्म करना एक अलग ही चीज़ है, उसके लिए एक अलग तैयारी है और उसके लिए मैं इस वक्त डेफिनेटली तैयार नहीं हूँ। मैं भी आने वाले वक्त में अगर कभी ऐसा लगा कि कुछ संगीत के अराउंड कुछ हो रहा है और मुझे लगा कि मैं निभा पाऊँ, बट हाँ कभी भी कुछ करूँगा ऐसा करूँगा जो निभा पाऊँ, वरना नहीं करूँगा। थैंक यू। आज तो लाइव परफॉर्मेंस नहीं है। Alright, एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए for giving up such amazing questions and once again please give it up for the crew. काफी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्सेस आए यहाँ पर। ओके सो नाउ एक चीज तो मैं भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से हम सब लोगों ने गाना सुनना शुरू किया है, कोई भी किसी ना किसी कोने में लाइक उनकी बॉडी अपने आप ग्रो कर रही है। यू डोंट